Yesterday we were discussing on John 15 verses 1 to 8. कल हम लोग यूहन्ना 15 उसमें 1 से 8 के ऊपर बात कर रहे थे. Before, whenever I had heard messages on this particular parable, इसके पहले जब भी मैंने ये विषय के ऊपर कोई प्रचार सुना था, there are many churches or there are many messages that I have heard that they say when if you are abiding in the Lord, the fruit is like you should be telling others about Lord and they should be accepting, right? Those are your fruits. तो मैंने कई सारे कलीसिया में ये सुना था कि जब भी हम लोग प्रभु यीशु में बनाए रहेंगे तो उसमें जो फल निकलता है वो ये है कि हम दूसरों को प्रभु यीशु के अपने बोलेंगे और वो लोग उनको स्वीकारेंगे. So, but I was corrected in one of the messages that I heard quite recently. लेकिन हाल ही में मैंने एक प्रचार सुना था जिसमें ये मामले मुझे मालूम पड़ा कि मैं गलत था. Because everywhere, if you read through it, it is not fruits that is there. It is a singular word that is fruit. क्योंकि हम लोग जब भी वो विषय में वो वचन में पढ़ते हैं वहाँ पे कई भी बहुत सारे फल के बारे में नहीं लिखा है, बस फल एक चीज के बारे में लिखा है. And yesterday, brother Avinash he pointed out correctly. In the very first verse, it says, "I am the true vine, and my Father is the vine-dresser." और कल भी हमने सुना पहले वचन में कि वहाँ पे लिखा है कि मैं दाख लता हूँ और मेरे जो पिता है वो माली है. प्रभु यीशु से बोल रहे हैं. So he correctly pointed out that it is nowhere me or you. It is nowhere connected to it. It is the Father is the vine-dresser, the Father is the gardener, and Jesus is the vine. तो ये वचन से हमें ये मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु दाख लता है और वहाँ पे उनके पिता परमेश्वर वो माली है. हम कहीं भी वो वचन में नहीं आते हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि हम उसके भागी नहीं है वो वचन में. And we don't have to do anything. In verse 5 also, end part of it clearly mentions, "For without me you can do nothing." और हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हम लोग आगे देखते हैं वचन 5 में भी प्रभु यीशु बोलते हैं कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते. So what is this fruit that he is talking about? It is given in Galatians 5:22. तो ये जो फल है ये किस चीज को दर्शा रहा है ये हम लोग गलातिया में देखते हैं उसमें चैप्टर 5 वाक्य 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. And this is all together one fruit. और ये सभी साथ में मिलके एक फल है. जैसे there's a fruit, there's a orange. Okay. जैसे हम लोग संतरा के फल को जानते हैं. Yeah, there's pomegranate. या पोमेग्रेनेट. So the orange has many pieces to it. तो हम लोग देखते हैं कि संतरा जो फल है उसके अंदर कई सारे भाग हैं. Okay, so the one piece would be love, the other piece would be joy, and various other things. तो वो एक उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं एक भाग है प्रेम, दूसरा भाग है धीरज, जैसे कई सारे भाग हैं. But that one piece is not the entire fruit. लेकिन वो जो एक भाग है वो एक पूरा फल नहीं है. That is just a part of the fruit. वो बस एक फल का एक भाग है. So that is how we have to become the complete fruit. उसी तरीके से हमें भी ये पूरा फल को हमारे जीवन में लाना है. Because it may be sometimes that somebody is speaking ill of me or somebody is making me angry, but I'm not showing off my anger, so I'm having the self-control. और हो सकता है कि कई बार लोग मेरे बारे में बुरे बोल रहे हैं या मुझे तुच्छ दिखा रहे हैं. उस समय मैं बाहर से तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ लेकिन अंदर मुझे गुस्सा आ रहा है. मैं बाहर बोलने का इसलिए रोक पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर खुद के ऊपर नियंत्रण है. So I have self-control, but I don't have the love, I don't have the peace. Then I'm not completing that fruit. तो वहाँ पे मेरे पास खुद के ऊपर नियंत्रण तो है लेकिन मन के अंदर प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है. तो इससे ये होता है कि मेरा जो फल है पूरी तरीके से बाहर नहीं आ रहा. So it's like we are talking about the wine, right? So wine, what is the fruit it gives? It gives a bunch of grapes. तो हम लोग दाखला तक अगर बात करें तो उससे कौन सा फल निकलता है? द्राक्ष. So you just take one grape, it is sweet, it is nice, and you take another grape, it is sour. तो अगर सोचो अगर हम लोग एक द्राक्ष से एक पीस को लेंगे तो वो बहुत ही स्वीट है लेकिन दूसरा है वो इतना स्वीट नहीं है. तो ओवरऑल what we decide, the bunch of grapes are not good. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो पूरा जो द्राक्ष का जो गुच्छा है वो अच्छा नहीं है. So similarly in our life, in my individual life, I have to achieve all this parts together, all the entire fruit together. उसी तरीके से मुझे मेरे जीवन में भी बस एक भाग नहीं लेकिन सारे भाग को पूरा करना है. So in John again it says that if you are abiding in it, it is He who will make you complete and a better fruit. और हम लोग यूहन्ना में देखते हैं वापस हमें लिखा है कि अगर हम लोग प्रभु में बनाए रहेंगे तो वो हमें पूरा करेगा और एक अच्छा फल हमारे जीवन में लाएगा. So it is not we who can do anything about it. It is only Jesus. It is only our Father God
who will be able to make us and help us to give a better fruit in the spirit. तो हम इसमें ये मामले में कुछ नहीं कर सकते, वो प्रभु यीशु है और हमारे पिता परमेश्वर है जो हमें हमारी मदद कर सकते हैं और हमारे जीवन में ये अच्छा फल लेके आ सकते हैं।